Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is motion. In our everyday life, we observe the various types of motion like vehicles moving on a road, flying birds, movement of needles of a watch, movement of blades of a fan, circulation of blood through the veins and arteries. Or you can say that atoms, molecules, planets, stars, galaxies, that all are in motion. Okay, if a body change its position with respect to time and its surrounding, so this is called as motion. Motion and rest are always relative but never absolute. So life is also a full circle, widening until it joins the circle motion of the infinite. Now, how will you define the motion? Motion, it is the change in the position of body with respect to time. Position means the location of an object with respect to the particular point. This is called as position of the object. Means a particular point पे जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं. सो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. So motion can be described in terms of distance moved or displacement. So this is the concept of motion. In physics, motion is a change in position of an object with respect to the time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time, and speed. The motion of a body is observed by attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in position of body related to the frame. Okay. Now, the next topic is types of motion. देखो बेटा, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, इसकी दो आपकी जो है 3 फॉर्म्स आती हैं. फर्स्ट इज़ रेक्टिलिनियर, सेकेंड कार्वलिनियर और थर्ड सर्कुलेशन. ठीक है, सर्कुलेटर मोशन. दिस इज द फर्स्ट रैंडम मोशन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन मोशन, थर्ड इज रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ इज ओसिलेटरी मोशन. ओके. नाउ फर्स्ट इज अ डिस्टेंस. Distance means the distance traveled by a body is the actual length of the path traveled by a body. Okay, means it is a scalar quantity. Scalar means the physical quantity which we can associate on the basis of only magnitude, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती. मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर. इसको हम नंबर से ही जो जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो एसोसिएट होती है नंबर से एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. Distance is a scalar quantity. Suppose हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज पॉइंट ए. ये 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है,
and suppose this is 5, this is 10, this is 15, 20, 25. This is point number C. After that 30, 35, 40, 45, 50, 55 and last is 60. लास्ट हम 60 लेते हैं. दिस इज पॉइंट नंबर A and this is point number B. Okay, so consider the motion of the object moving along a straight path. ठीक है, the object starts its journey, ये कोई object O है, from O से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है. ठीक है, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट बोला है. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मीन्स ओरिजिन बोलते हैं. मीन्स द पार्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड. ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन यहाँ से स्टार्ट होती है. दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. नाउ ए बी सी, जो आपने ए बी सी लिखा है, दैट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम सी टू बी, पहले सी से बी में जाता है एंड देन फाइनली रीचेज टू पॉइंट ए, पॉइंट ए पे पहुंचता है. देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू द बी. अब ये ए से वापस सी पे पहुंचता है और पॉइंट बी इसके बीच में आता है. तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा, means total distance means the actual length of the path covered by the body. यही है. अब इसमें क्या आ जाएगा, ओ से लेके ए तक कितना कवर किया है, प्लस ए से लेके सी तक कितना कवर किया है. तो ओ से लेके ए तक किया है 60, प्लस ए से लेके सी तक कितना है 35. ओके, कितना कवर किया है 35. तो टोटल इज 95. तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज 95. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट means the change in position of the object when it moves from a given position to another position. Means it is the length of the shortest path traveled by a body from initial position to final position. Suppose this is the initial position and here we move. After that this is all यहीं पे आके जो है जुड़ गया, तो this is the final position. मीन्स जो भी छोटा सा पाथ मेज़र होगा किस डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वाई दिस क्वांटिटी इज वेक्टर, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद नंबर एज वेल एज डायरेक्शन. ये डायरेक्शन भी बताएगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, और नंबर भी बताएगा कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है. तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बेटा डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर. ओके, दोनों की ही यूनिट मीटर में होती है क्योंकि लेंथ मेजर करते हैं इसमें. ओके, सो हेयर वी टेक वन एग्जाम्पल. Suppose a bus is moving in a straight path. Suppose this is the path. This is point O and this is point A. This is point B and वापस से बेटा ये यहाँ आती है point C, मान लो इसको. ठीक है, अब O is the starting point of the bus. Okay, it reaches a position, इसको हमने मान लिया 30 किलोमीटर. सपोज 30 किलोमीटर है.
ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अ बस रीचेज टू पोजीशन बी, अब इस पे बी पे पहुंचती है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 किलोमीटर मूव करती है। अब ए से सी तक का जो ए से बी तक का जो पोजीशन है दैट विल बी आपकी है 45, और बी से सी तक का जो पॉइंट है बेटा वो है 20 किलोमीटर। ओके, ये है। इट मीन्स हम यहाँ लिख लेते हैं ओ ए है 30 किलोमीटर, ओ बी कितना है, ओ से बी तक टोटल 30 + 45 दैट इज 75 किलोमीटर। ओके, और बी सी कितना है बेटा, बी और सी दैट इज 20 किलोमीटर। इट मीन्स हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, बस की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ओ सी है, ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें, ठीक है। ओ सी हो जाएगा बेटा ओ बी माइनस बी सी। ओ बी कितना है आपका, ओ बी है आपका 75, बी सी कितना है 20। इट मीन्स दिस इज 55 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस। ओके, नाउ some important point related to distance versus displacement. Distance versus displacement. देखो फर्स्ट पॉइंट, displacement of a moving object can never be greater than distance traveled by it. कभी भी ग्रेटर नहीं होते डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट मीन्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। बस ये पॉइंट आपको लर्न करना है। सेकंड बेटा, सेकंड पॉइंट ये है कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मींस एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज़ें इक्वल होंगी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन दैट मे बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, बट जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, एंड ज़ीरो हो सकती है। ओके, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब मोशन बेटा आपका 2 टाइप से है, मेन जो आपका है वो 2 टाइप से और भी होता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कम टाइम जो है यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता हाउ द स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी यूज्ड। ओके, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज इंक्रीजेज लीनियरली, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज करेगा।
हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का. A car moving along a straight path, if it covers equal distance in equal interval of time. So this type of motion is called as uniform motion. Okay. Second is non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम अपोजिट लेंगे बेटा, जो आपने यूनिफॉर्म में बताया सेम, जस्ट इसका अपोजिट. इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम इक्वल इंटरवल लेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट. ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस लेंगे हम. ठीक है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं. क्राउड मार्केट में कार जब मूव करती है तो बहुत स्लो. ठीक है, इक्वल इंटरवल है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है. ठीक है, वहाँ पे टाइम लगेगा हमें. ओके, और उतना डिस्टेंस हम कवर नहीं कर पाएंगे सेम टाइम के अंदर. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म motion. Okay. Now the next topic is rate of motion. Rate of motion means the ratio of rate of motion. It means the ratio of distance travelled by an object divided by time taken. This is the rate of motion. To measure the rate of motion, various types of terms are required, like speed, velocity, acceleration. Okay, now I will discuss one by one. First is speed. Speed is the distance travelled by a body in a unit time. Suppose speed is equal to distance by time. It means if a body travel a distance s in time t, it means जो आपकी स्पीड होगी, स्पीड को हम v से शो कर रहे हैं, डिस्टेंस हम s मान रहे हैं, टाइम क्या है t, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू s बाय t. ओके, हेयर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. देखो बेटा, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में. ओके, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. ओके, speed has only magnitude, so it is a scalar quantity. Speed क्या है, scalar quantity है, because it has only the magnitude. Okay. Now one more important point of speed, the distance traveled by the object is either positive or zero. या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा. देन स्पीड ऑल्सो मे हैव पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव. अगर डिस्टेंस ट्रेवल पॉजिटिव या ज़ीरो है तो स्पीड भी हमारी पॉजिटिव और ज़ीरो ही होगी, बट डिस्टेंस स्पीड नेवर नेगेटिव. स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव नहीं होगी. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड. स्पीड इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स if a moving body cover equal distance in equal interval of time.
अगर बेटा इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बेटा कांस्टेंट स्पीड, उतना ही इक्वल डिस्टेंस कर रही है, इक्वल टाइम में कर रही है, इट मीन्स दिस स्पीड इज इक्वल स्पीड, मीन्स कांस्टेंट स्पीड है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म, सेम लेंगे बेटा, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर टाइम सेम है बट जो डिस्टेंस है दैट विल बी अनइक्वल, देन सो वी कैन से दैट वेरिएबल स्पीड, इसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये दो मेन है बेटा, और भी स्पीड की दो टाइप्स और भी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, जो थर्ड टाइप है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड इज एवरेज स्पीड, जो आपने सुना है मैथ्स में भी निकालते हो आप स्पीड एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड, और फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, मीन्स स्मॉल टाइम पीरियड होता है उसी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है ये। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अब लेते हैं थर्ड टाइप, दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होती है बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ओके, ये होती है। सपोज टोटल डिस्टेंस हमारा हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज S1, S2, S3, ऐसे हमारा टोटल डिस्टेंस है, और भी हो सकता है हमारा, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, ऐसे हम इसका टाइम भी ले सकते हैं। इट मीन्स हाउ विल यू डिफाइन द एवरेज स्पीड, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, ओके, दिस इज द third type of speed. Now the fourth type of speed, that is instantaneous speed. Point number 4, instantaneous speed. देखो बेटा इस केस में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर होती है, मीन्स एक पार्टिकुलर पॉइंट पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, कर सकते हो। नाउ वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं लेती हूँ अभी एवरेज स्पीड पे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 40 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकेंड में, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ए मान लेती हूँ मैं, इसको ऑब्जेक्ट बी मानती हूँ, ये 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा इसमें कैसे आएगा, ये S1 हो जाएगा आपका, ये S2 है, ये T1 है, ये T2 है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2 डिवाइड में T1 प्लस T2। बेटा S1 S2 क्या है, 14 प्लस 16 डिवाइड में 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 30/6, 30/6 आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 meter per second, meter per second is the unit of average speed because distance is measured in meter and time is measured in second, okay,
So this is the average speed. Now the next topic is velocity. Velocity means speed of an object moving in a definite direction. इसमें हम डायरेक्शन लेते हैं बेटा, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे. वेलोसिटी होती है आपकी मेनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज होती है, ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डी बाय स्मॉल टी. ओके, मीन्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है, ठीक है. तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है और ये क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करती है बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज यूज्ड इन टर्म ऑफ मीटर एंड टाइम इज टेकन इन फॉर्म ऑफ सेकेंड. तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, velocity of an object that can be positive, zero and negative. Okay, velocity of an object that can be changed by changing the object speed and direction of motion or both. आप स्पीड को चेंज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की, या उसकी मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, या दोनों को भी चेंज कर सकते हो. सो दिस इज द velocity. Okay, now the next is types of velocity. Okay, velocity also is of 4 type. First is uniform velocity, second is non-uniform velocity, third is average velocity, and fourth is instantaneous velocity. Okay, first is uniform velocity. Uniform velocity means if an object cover equal displacement in equal interval of time without changing the direction. So means इसकी जो velocity है that remain constant. So this type of velocity is called as uniform velocity. Second आती है बेटा non-uniform velocity. If the object cover unequal displacement in equal interval of time. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी. अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है. ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कौन सी होती है भाई, इसमें हम v एवरेज लिखेंगे बेटा. दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन द एवरेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स वहाँ पे हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वी एवरेज, तो वो हमारी डिपेंड करेगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम मानेंगे u प्लस फाइनल वेलोसिटी इज v डिवाइड बाय एवरेज लेना है दैट इज 2. ओके, सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. Now next is fourth type, that is last type, instantaneous velocity. Okay, इसमें क्या होगा कि जो velocity of an object at a particular instant of time,
एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स यू कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है, ये शो करती है स्पीड डायरेक्शन के साथ। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।